अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मैदान से उस वक्त तक दुश्मन भगा नहीं सकता जब तक आप अपनी हार को खुद तस्लीम न कर लें। नो पर्सन हैज एवर डाइड ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर बट स्टेइंग इन वाटर। आपका जिंदगी में गिर जाना एक हादसा है, लेकिन गिर के ना उठना यह आपकी शिकस्त का अपना फैसला है, और जब तक ये फैसला आप खुद नहीं करेंगे, जीत आपका मुकद्दर रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही अपना शो। आपको लेके चलते हैं आज बैंड वालों के दफ्तर में और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हाल है। और ठहरो, रुको। अजी की हो गया, कितने जाना जी? ये क्या कर रहे हो? रियाज कर रहे हैं, और की करना जी? बाजों का भी रियाज होता है भाई। बहुत अच्छे जी, ये काम एडा सौखा, ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਬੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, साह भूल जाता। नहीं, वाकई ये बहुत हिम्मत का काम है, इसमें होंठ भी खराब हो जाते हैं। होंठ की यही गारा चटते भाई पता चल जाता है होंठ से ना, निचले होंठ से कि कौन बाजा बजाने वाला है। ये चंडी पै जाती है इत्थे जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कहाँ है आपके मास्टर साहब? कहाँ है? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ भी आ जाते। हरून साहब साडा शो देखीदा, बहुत मजा आता। अच्छा, काम कुम तो है कोई नहीं, टीवी ते यही देखीदा होशियारियां। क्या अच्छा लगता है तुम्हें हमारे शो में? साडे शो जो सब तो खूबसूरत मैनू ना ਉਹ लड़की लगती है, की है ना किरजा ਇਹਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ जी। आपका फैन मिल गया वाह जी। वाह मैं ऑटोग्राफ लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, एक सेल्फी भी लेनी है, नाल 200 नकद भी लेना मैं। अच्छा, मास्टर साहब कहाँ हैं तुम्हारे? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ओए होए। ਤੇ ਘਬਰਾ ਜੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ। ਆਹ ਤਰੇਲੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਗਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। अच्छा तो हुआ क्या जब फोन आया? ਬਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, अच्छा। ਫੋਨ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ओए होए। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੱਲਾਂ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਊਂ। ਫਿਰ ਬਸ ਗਿਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਆ कहने ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸੀ, हाँ, ये बात सही ਅਸੀਂ है। ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਭੌਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਭਾਗ ਆ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। माड़ा है। ਬਈ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਹੀਦਾ, ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, कर देता ना इसे। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ठीक है। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। पीछे, अच्छा पीछे मुड़ के देखो। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, अगर तुमने तरक्की करनी है ना हाँ जी, हाँ तो आज पीछे देखो। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਗਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਓਹੋ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਐਸਾ ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰ ਫਟੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ वो क्या? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤਰੰਪਟਾਲਾ। तो ट्रम्पेट की बजाय बड़ा बाजा ब्रास उसने डाला। ਇਹਦੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अच्छा, ये फंसा कैसे बाजे में? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਕੂਆ ਹੈ। वो क्या? ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ कहने, ਕਿਆ ਸਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਆ, अच्छा। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਸੁਰੀਲਾ ਖਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ जी। ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 6-7 ਜੰਜਾ ਭੁੱਖਾ ਬਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਿਤੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। ਸਾਹਬ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਭ ਪਿਓ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਠਿਆਈ ਜੀ, ਮਠਿਆਈ माशाल्लाह ਇਹ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि आप इनको बुक करने के लिए आए? ਮੈਂ ਜੀ ਕੋ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, 8 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ। 8 दिन फंक्शन चलेगा? 8 ਦਿਨ ਵਾਜਾ ਹੀ ਵਜਣਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ जी। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੀਦਾ माशाल्लाह ਜੀ। अच्छा अच्छा, माशा। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕੇ। तो ये बताइए, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा नहीं, नहीं, आप ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ।
अच्छा जी मैं नहीं बोलता, आप ये ले जाएं प्लीज, आप बुक करें। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਬਾਅਦ ये लें जी। अच्छा जी उनको बताएं आप। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਅਖਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਗੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਤੁਮ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੰਮ ਲਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਅਗਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ जी ਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ अच्छा जी ਔਰ ਨਾਲ ਦੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਠਾੜ ਚੱਕ ਠਾੜ ਚੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਰਾਤਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਠਾੜ ਚੱਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੇ ਧੁਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ अच्छा। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। क्यों? ਇਧਰ और ये क्या कर रहे हो तुम? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਜਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਬਾਜਾ ਵਜਾਣਾ, 8 ਦਿਨ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਸੋਢੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਚੌਰੀ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਠਾੜ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਦੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ ਸਾਡੀ ਦੋਂਦੇ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ? ਉਹ ਜੀ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ रोटी देनी है क्या मतलब हुआ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਲਾ ਦੋਂਦੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ दोंदी क्यों कह रहे हो? ਹਜ਼ੂਰ, ਕਾਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ये कौन सी नहीं मेहंदी मेरा है ख्याल जिसपे चिट्टा सादगी ना शादी हो रही है जी। ये कौन सी, वाकई आप सही कह रही हैं, कौन सी मेहंदी जिसमें सफेद चलता है भाई? ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੌਰੀ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ अच्छा ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖੇਡ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਣਾ ਨਸਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ। ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, है जी क्या? ਮਰ ਗਏ आपके वालिद? ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। तो आप बैंड क्यों लेने आए हैं? ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। अच्छा ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਫਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, अच्छा ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। हारून साहब, लेकिन ये इतना खुश क्यों लग रहे हैं? इनके वालिद की डेथ हुई है। वो बता रहे हैं कि इकलौता बेटा हूँ और इतनी जायदाद वो छोड़ के गए हैं और ढोल ताशे भी बजा रहा है उनकी खुशी में जाने की। और मुझे तो लग रहा है उन्होंने वसीयत नहीं की, ये खुद खुश है इसलिए बजवा रहा है। ਨਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ क्या? ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਰਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜੇ, असल में मेरी ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। यार वैसे किस जगह तुम लोग आ गए हो? क्या तुम लोगों की हिस्ट्री थी? मार्चिंग बैंड्स जो थे वो जंगों में जाया करते थे। हारून साहब, जंगों से ही आगाज हुआ था बैंड्स का। जी हाँ, ये तो तकरीबन कुछ 3,500 साल पहले, 1500 बिफोर क्राइस्ट, तब से ये ट्रम्पेट वगैरह ये जंगों में बजते थे। टूटनखामुन जो है उसके मकबरे से भी उसके साथ ट्रम्पेट पड़े थे जो निकले हैं। और कहते हैं कि उस ट्रम्पेट में ना तो वॉल्व होती थी ना की होती थी, जी हाँ, की और वॉल्स नहीं होते सीधे थे। होते थे। जी हाँ, उसमें एक ही बी माइनर जो थी वो बजती थी। जंगों से आगाज, जंजों में इख्तिताम। लेकिन वाकई ये इवेंट्स वगैरह में कब इंट्रोड्यूस हुए? ये अर्ली 1900s के अंदर अमेरिका में पर्जू के नाम से, ऑल अमेरिकन मार्चिंग बैंड के नाम से बना था। उसमें परकशन बिल्कुल मिडल में होता था और साइड्स के ऊपर ये सारे ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, ब्रास वगैरह। लेकिन अब आके इन्होंने 2 लाइंस उसकी बना दी हैं जिनमें परकशन पीछे कर दिया है और ये ब्रास वगैरह आगे कर दी। हारून, ऑटोमन्स ने सबसे पहले जो बैंड्स थे इनको फौज का प्रॉपर यूनिट बनाया था और उसमें मेम्ब्रेनोफॉन्स जो थे वो ज्यादा थे और इडियोफॉन्स बहुत कम हुआ करते थे। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਤੜ ਆਉਂਦੇ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। अच्छा जी, आप उनका फंक्शन बुक करें जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ।
अच्छा जी, फौत कैसे हुए हैं? नहीं मैं तो शहर ही सा जी। अच्छा, वो पिंडों फोन आया ना, क्या? उन्हें कहा बाबा ठुर गया। अच्छा, मैं पहले वाजे बूजे बुक कर लिए, फिर ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰਿਆ। बेशरम आदमी वैसे। ਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਲਾ। सर जिस वसीयत की ये बात कर रहा है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है इसके पास? वो कोई लिखी लिखित हुई है वसीयत? तुम्हारे पास वसीयत? ਨਾ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਚਵਲ ਨੱਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਚੂਸੀ ਕਰ ये वो आपको बुरे तरीके से कह रहे थे। ਉਹ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੇ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਬਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ अस्सलामुअलैकुम जनाब। ਕੱਟੇ ਕੇਲੇ। ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਬੇਲੀ। ये हाल है जनाब? ਅੱਛਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਓ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਬੈਠੋ जी, किस सिलसिले में आए हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਚਾਵਾਂ 4 ਕਰ ਦੇਵੇ। कादली मेरी बहुत रहम दिल है। ਇਹ ਚਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦੇ। तू बकवास बंद कर। ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਾੜੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸੋ ਮਰਿਆ ਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਹੱਸੋ ਤੂੰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਬਾਜਾ ਵਜਵਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਇਹ ਚੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? 68। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠਾੜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। मेरा ख्याल है इस साल काफी दोंदे मर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो वालिद थे हाँ जी। उनकी कितने मुरब्बे थे? 10 ਮੁਰੱਬੇ। 10। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ 10। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣਾ ਔਰ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, दोनों के वालिद का नाम एक, गांव एक, जमीन एक जितनी। ਔਰ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਰੁਕਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ, ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ, ਤਰੀਕ ਇੱਕ, ਅੱਬਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਗਿਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾ। अस्सलामुअलैकुम जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ क्या हाल है जी? ਤਸ਼ਰੀਫ ਇਧਰ आज तो कोई भागा वाला देना अल्लाह गाट दा ते करम गाट है। पे ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ आज ਚੜਿਆ तो ਹੈ। मास्टर साहब लाइन लगी लोगों की। ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜੀ? 68 ਚੱਕ ਚੋਂ। 68 ਚੱਕ ਚੋਂ। 68 ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ? जी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 150 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। जी जी जी। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ, हाँ जी। ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। नहीं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, हाँ जी हाँ जी ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚਵਲ ਮੇਰੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਊ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ? मैं तो इकलौता बेटा वां। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ मेरा तो फर्क साफ जाहिर है। मुझे लगता है कि दोंदा साहब की ना 3 शादियां थी। जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਡੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਬਦਮਾਨਸ ਹੋਏਗਾ। हारून साहब, लेकिन ये एक ही गांव से हैं, फिर ये एक दूसरे को जानते कैसे नहीं? उन्होंने छुपा के रखा होगा ना अपनी बाकी मैरिजेस। ਹਰੂਨ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ जी ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਧਣ ਡੇ ਆ जी जी। ਮੈਨੂੰ ਕੋ 4 ਕਮਰਲੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਜਿਉਂਦਾ। अब्बा जिंदा है? अब्बा जिंदा है? अच्छा जी, आप कौन है? ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ये आपके वालिद है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी, ये तीनों आपके बेटे? जी ये मेरे पुत्र हैं। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕੜ ਕੀਤਾ ਜੀ? अच्छा आप ये बताएं, ये तीनों एक दूसरे को क्यों नहीं जानते? पुत्र मेरी 3 शादियां हुई हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰ। अच्छा। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਓਏ ਅੱਬਾ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਓਏ ਅੱਬਾ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਓਏ ਅੱਬਾ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਮਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। और जेड़ा मैं बाबा नौकर ने रखा हाँ। वो मरा है। अच्छा अपने दोनों साहब बेटी जनाब दी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रहे हैं? और मास्टर क्यों बकवास पिया करना है? मैं तो बैंड वास्ते क्यों भला फोन किया है? क्यों? चौथी शादी इंदे नाल मेरी। चौथी शादी हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਆਪ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? अपने दोनों साहब बच्चे थोड़ी किस किस बीवी चो किस तरह तीजी चुआए होया, दूजी चुआए होया ते पहली चुआए होया। ਉਹ ਮਰੇ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਕਰ ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। अल्लाह जानदा मेरा दिल इंज होया मैं कहे भी दोंदे दा नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। द कोल्डेस्ट विंटर आई एवर एक्सपीरियंस्ड was the summer of San Francisco. पड़ोले के लिए प्लीज तर्जुमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। साथ तो मेरे चांसलर बैठा हुआ है ना। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी शहर कहानी। बहुत अच्छा। जो आज हम आपके लिए शहर लेकर आए हैं वो कैलिफोर्निया स्टेट का एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को। मुझे पर्सनली सैन फ्रांसिस्को इसलिए बहुत अच्छा लगता है, वहाँ नीलगू आसमान है और वहाँ पर एक फिनोमेना है अजीब कि वहाँ एकदम फॉग आ जाती, कोई पता नहीं है कि आप अपने घर से निकले हैं, पूरा शहर साफ था लेकिन अचानक धुंध आ गई और वो बहुत हल्की हल्की धुंध होती है और उस धुंध में बिल्डिंग्स के जो टॉप होते हैं वो ऊपर निकले होते हैं और जिनके ऑफिसेज हाई राइज हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके दफातर बादलों में। वाह वाह वाह। और वहाँ की धुंध इस कदर यख बस्ता होती है। मार्क ट्वेन ने वहाँ की फॉग के मौसम के बारे में एक बात कही थी। उसने कहा था कि द कोल्डेस्ट विंटर आई एवर एक्सपीरियंस्ड was the summer of San Francisco. वाओ, लेकिन पड़ोले के लिए प्लीज तर्जुमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। साथ तो मेरे चांसलर बैठा हुआ है ना। और मेरे भाई आपको समझाएंगे, हम भी समझ जाएंगे। ਓਏ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? नहीं ਆ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਜੀ। जी अच्छा, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा सर्दी मुझे लगी या जो सबसे यख बस्ता सर्दियां मैंने महसूस की वो सैन फ्रांसिस्को की गर्मियां थी। सैन फ्रांसिस्को में जो सड़कें हैं वो पहाड़ियों की तरह हैं, ऊंची और नीची। वहाँ बहुत से ऐसे फुटपाथ हैं जो सीढ़ियाँ हैं, वो सीधे नहीं है फुटपाथ, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो कभी भी अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाइए तो गूगल पर कभी एतमाद न करें अगर आपको वो ये कहे कि आप पैदल चले जाएं, क्योंकि आपको इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी कि आपको लग बता जाएगा। और वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अगर आप स्टीयरिंग को मोड़ते नहीं है तो आपका चालान हो जाता है, यू विल गेट अ टिकट। क्यों क्यों बताइए, बूझिए। वो यानी कि पीछे से अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल कोई ऐसी चीज है तो उसमें ना लगे, वो टायर से लग के तो निकल जाए। फिर तो वो यहाँ भी होना चाहिए लॉ, फिर तो पूरी दुनिया में ये लॉ होना और चाहिए। नहीं सर, अगर सीधे करेंगे तो वो गई अंदर। कहाँ अंदर? ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल ये वजह है कि सड़कें यूं हैं, आपने गाड़ी हमेशा स्लोप पे ही खड़ी होगी आपकी, तो अगर आप टायर उसके नहीं मोड़ेंगे तो वो स्लाइड डाउन कर सकते। और सैन फ्रांसिस्को से ही रूट 1 निकलता है। उसकी क्या खास बात है? रूट 1 वो रूट है अमेरिका का जिसके बारे में सारी जिंदगी लोग प्लान बनाते रहते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं कि एक दिन हम उस सड़क पर गाड़ी चला के उस पूरे रूट को देखें। उस रूट की खास बात यह है कि जब आप उस रूट पे निकलते हैं सैन फ्रांसिस्को से तो आपके एक तरफ समंदर है हाय हाय। और जो रोड है वो बहुत एलिवेटेड है। वाह जी वाह। आपको तहद्दे निगाह समंदर नजर आता है और आपको लगता ऐसे है कि जैसे आसमान और समंदर एक जगह जाके मिल गए। और जब आप अपनी दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको पहाड़ नजर आते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों की तरह आपके पीछे खड़े हैं। वाह। वहाँ एक जगह ऐसी आती है जिसको बिक्सबी क्रीक ब्रिज कहते हैं, बहुत मशहूर ब्रिज है वो, बहुत सी जगहों पे उसकी तस्वीर आपने देखी होगी, हम अभी अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखाते हैं। उस ब्रिज पे खड़े होके एक ऐसा नज़ारा होता है शाम का कि जो देख के आप हैरान हो जाते हैं
वो ये कि जब आप समंदर की तरफ देखते हैं, सूरज जहां गुरूब हो रहा होता है वहां दिन होता है, वाह वाह, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां रात होती है। और एक जिहा बंदा इन्ना फिरिया ਹੁੰਦਾ कि पाकिस्तान आके कहता मेरे 15 जॉगर लगे हैं वहां। बहरहाल जी हम वापस आते हैं ਸੈਂਸ अजे फिर वापस जाना उधर। सैन फ्रांसिस्को। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ, ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਮੱਝ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਸੈਂਸ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ कौन सी? 7 दिन में महबूब आपके कदमों में। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है सैन फ्रांसिस्को। सीधा ना साडा की तल्लक है को मेहरबानी करो। अच्छा चलें, अब आपको आपके मतलब की बात बताता हूँ जिसमें आप खुश होंगे। दुनिया की सबसे पहली सबसे खतरनाक जेल एल्काट्राज, वो भी सैन फ्रांसिस्को में है। एक 2 मिनट ठहरो, मैं अपनी हथकड़ी चुक लिया मैं। अच्छा, एल्काट्राज को द रॉक भी कहते हैं क्योंकि वो एक जजीरा है, रॉकी आइलैंड है छोटा सा, उसके ऊपर उन्होंने वो जेल बना रखी थी एल्काट्राज। अभी भी वहाँ है, अब तो वहाँ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं। और वो फेमस उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई जब अल कपून को वहाँ पे कैद किया गया, और सबसे जो हीनियस क्राइम्स करते थे उन लोगों को वहाँ बंद किया जाता था, और कहा यह जाता था कि इस जेल से कभी कोई फरार नहीं हो सकता। जैसे काला पानी की सजा भी है। नहीं, काला पानी और चीज़ है यार साडी गल नूं खुदा दी हुन नहीं भाई, वो तो कुछ और है। अच्छा जी, एल्काट्राज के बारे में ये कहा जाता था कि इससे कोई फरार नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि अगर कोई फरार हो भी गया तो आसपास जो पानी है वो इस कदर ठंडा है कि कोई स्विम नहीं कर सकता और जा नहीं सकता, कहीं मर जाएगा। लेकिन 3 लोगों ने फिर भी वहाँ से फरार हासिल किया। वाह, जग्गे ने उत्थे भी जेल तोड़ी जी। 1962 में फ्रैंक नामी एक आदमी था जिसने लीड किया, और 3 लोग थे, वो वहाँ से भाग गए, आपका जो जगह था, और फिर 1963 में उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया एज अ जेल। और अभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, और जहाँ से वो आदमी फरार हुआ था, जिस सेल में वो रहता था, उस सेल में मैंने भी कुछ वक्त गुजारा। तो हारून सर, वो जो मूवी है एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज, वो इसी पर बेस्ड है? वो एक्चुअली एक नावल पे बेस्ड है, जो नॉन फिक्शन नावल है, जो इस फरार के बारे में है, उस पे बेस करके वो मूवी बनी है। लेकिन असल में वो किताब पढ़ने वाली है, एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज। कैसी मजेदार बात है कि एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को में बनी, और जिस बंदे ने काम किया वो भी सैन फ्रांसिस्को से। क्लिंट ईस्टवुड। हाँ जी। अच्छा, आपने जो क्लिंट ईस्टवुड की बात की, जब वो ये फिल्म करने के लिए आए, उन्होंने ये फिल्म की, रूट 1 पे गए, तो रूट 1 के ऊपर जो वो फॉग है, वो पहाड़, वो समंदर, वो बीच, उनको इतना अच्छा लगा वो दिन और आज का दिन। क्लिंट ईस्टवुड ने वहां अपना घर बना लिया। और जो बंदा ना इस्लामाबाद दी कोच बैग मुकेश का गाना सुनकर हो रहा होता और पूछे ने कि मुकेश मेरे ताया था। मोटरसाइकिल्स का जिन लोगों को शौक है, जैसे हमारे कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर साहब को बहुत शौक है मोटरसाइकिल्स का, तो उनका जो गढ़ है, वो जो हर साल पूरी दुनिया से जो मोटरसाइकिलिस्ट इकट्ठे होते हैं वो मॉन्टरे में होते हैं। हारून, सैन फ्रांसिस्को की सेटिंग में एल्फ्रेड हिचकॉक की एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जी, वर्टिगो। बिल्कुल देखने वाली फिल्म है। बहुत ही आला फिल्म है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ था आज अल्लाह ने शो करवा दिया। क्यों? ऐनक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरी लगाया था मैं। सर वैसे तो ये पूरी रियासत ही फनकारों की रियासत है, लेकिन इसमें सैन फ्रांसिस्को काफ़ी प्रोग्रेसिव है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जो भी नई चीज़ ईजाद होती है या नई चीज़ें जो निकलती हैं, यहाँ से बहुत सी नई चीज़ों के सौते फूटे हैं। म्यूज़िक में, जैज़ में और सेक्सोफोन वगैरह, वो यहाँ का खासा है। अच्छा जी, मौसीकी की बात चल निकली है, तो आज हमारे साथ शुजात अली खान मौजूद हैं और मेरी फरमाइश पे एक बहुत अच्छा गाना हमारे लिए लेकर आए हैं। तो आइए इनसे गाना सुनते हैं। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में
आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की खड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे पे थोड़े से पैसे आ जाए ना जी जी, एक कश्ती खरीदूंगा, इन सबको बीच में बिठाऊंगा, जी जी, दरमियान में जाके आप भी डूब के मरूंगा, इनको भी ले डूबूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, अब हम चलेंगे अपनी ऑडियंस की तरफ, देखते हैं आज उनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं बुनियादी तौर पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मुझे 2002 से मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ गया और मैंने जायचे बनाने शुरू कर दिए। डॉक्टरी से जायचे की तरफ कैसे आ गए? जी, ऐसा हुआ कि मेरे एक पेशेंट थे जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में जो बातें बताई थी वो बड़ी हैरानकुन थी। अच्छा। और उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं आता था। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं बादशाह वक्त का नजुम हूँ। अच्छा। तो मैंने 2006 में यूसुफ गिलानी साहब को कहा कि आप अगले वजीर आजम पाकिस्तान है। उन्होंने कहा बेनजीर जिंदा है, मुझे कौन बनाएगा वजीर आजम? मैंने कहा जी मेरा इल्म यहीं आग खड़ा हो गया, इससे आगे जाता नहीं। अच्छा। तो 2008 में वही यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और अभी क्या प्रेडिक्शन है आपकी नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से? नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं, वैसे जब वो उसका टाइम आएगा तो उसमें देखेंगे कौन से सितारे ताकतवर हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब का जायचा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि होशियारियां के गायब दिमाग प्रोफेसर का पालतू बंदर चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लो जी, प्रोफेसर ने बंदर भी रख लिया। ये तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में भी 2 नौजवानों को पकड़ा गया है। वो पहले बंदर का तमाशा किया करते थे मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया में, और उससे पैसे वैसे कमाते थे। अब क्योंकि बच्चे सेलफोन पे लगे रहते हैं, बिल्कुल, तो बंदर का तमाशा देखने वाले बच्चे नहीं रहे, कोई भी नहीं देख रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने बंदरों को वो छोड़ देते थे लोगों पर, और जब उन्हें डराता था तो कोई अपना औरत बैग छोड़ के भाग गई, कोई आदमी अपना सेलफोन गिरा के भाग गया, तो वो लूट लिया करते थे, तो वो गिरफ्तार हो गए हैं। हाय हाय। लेकिन क्या बंदर को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है? बंदर को तो बहुत से कामों के लिए ट्रेन किया जा सकता है। एक ऐसा बंदर था जो अपने मालिक के घर की सफाई भी करता था, फर्नीचर भी साफ करता था, खिड़कियों के शीशों को भी कपड़ा मारता था। वाह वाह वाह। माइकल जैक्सन का बंदर बबल्स, $2 मिलियन का मालिक था वो बंदर। अच्छा जी। और वो जी वही हाँ। कपड़े और पहनता था। माइकल जैक्सन ਉਹਦਾ स्टेप भी कर दे। ये क्या कर रहे हो? कर दे नहीं सी माइकल जैक्सन साहब, वो मून वॉक करते थे। सर जो कपड़े माइकल जैक्सन पहनता था वही वो पहनता था। जी हाँ, और माइकल जैक्सन के ही रूम में वो सोया करता था। माइकल जैक्सन का वॉशरूम इस्तेमाल करता था। जहां माइकल जैक्सन खुद शावर लेता था वहीं वो शावर लेता था। लेकिन बंदर से इतनी मोहब्बत समझ में नहीं आती। अच्छा, जो लोग भी पेट रखते हैं ना, वो अपने बच्चों की तरह ही उनसे मोहब्बत करते हैं, और जब पेट चला जाता है दुनिया से तो वैसे ही सोग का समा होता है घर में, कि जैसे मतलब आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मेरे 2 पेट्स मर चुके हैं, तो वो कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जिनमें आपको ऐसे ही लगता है कि कोई फर्द कम हो गया। चल हरून साहब नु सलाम करके बखा। ओ तेनू नहीं कह रहे। तुम्हारी तबीयत क्यों बंदरों वाली हुई भी? वो बांदर नु क्या और एच भी करन लग पे। और वैसे साइंस के मुताबिक बंदरों और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 1% का फर्क है। लेकिन सर गायब दिमाग प्रोफेसर को क्या सूझी? पहले तो वो खुद जाता था, अब उसने बंदर को घरों में घुसाना शुरू कर दिया। ओ भाई तेरा तो दिमाग खराब हो रहा, किसी की सुनो तो सही। जो ये मेरे साथ बकुआ हुआ है बंदर जी।
माशाल्लाह वास्कट पाई ये तो माइकल जैक्सन तो भी अमीर है। यार बंदर वो सामने बैठा है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब, अंधा होगा साले। और सर में अन्ना तो नहीं हो, यूम मिर्जा है। यार वो बंदर है सर यूम मिर्जा बंदर है। यानी वो हमें और इंडिया में भी एक बंदर था पानीपत के इलाके ओ में। भाई इधर मेरी बात सुन ले। हाँ जी। मेरा तेरा स्टोव जैसा मुंह है। यार ये थारे दोनों बंदे जो सामने बैठे ना, बांदरों को ये जानते जी, साइंसदानों को ये जानते हैं। हाँ हारून, इसी तरह याद है कि ब्राजील में एक तोता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ इसी तरह मैं भी किसी दिन कहूंगा कि आज बहुत याद आ रहा है। तेरी तो दुआएं फिर तेरे साथ यही जाएंगी। एक बात सुन लो, जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अच्छा सर वो फिल्मों में भी बंदर मैंने देखे हैं जो ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ जाता है, बहुत किंग बड़ा कॉन्ग। बंदर, किंग कॉन्ग। जी हाँ। ते आज के बात ना अपनी बिल्डिंग पे सोया कर, हो सकता रात को चिड़े वो बात। ओ भाई मेरे जैसा नहीं, आप जैसा था। बस चबल के बच्चे मेरी तो बात छोड़ तू। कोई डिस्टर्ब ना करे जी। बताइए आपके घर में घुसे? अजी मेरे घर में घुसे है। अच्छा जी। असल में हुआ ये सर बबूल भी तो बंदर ही होता है ना। जी अच्छा, ये मेरे सारी पे थोड़े से पैसे आ जाए ना, जी जी एक कश्ती खरीद दूंगा, इन सबको बीच में बिठाऊंगा, जी जी। दरमियान में जाके आप भी डूब के मरूंगा, इनको भी ले जाऊंगा। अच्छा भाई जी, पहली बात तो मेरे आपसे एक सवाल है मेरा, जी जी पूछिए। कि ये छोरी बांदर को भी इतने गौर से देखे? वो आगे का नजर आ रहा है। आज तो बंदर ने वास्कट पहनी, देखेगी तो सही। यार तो पीछे ही पड़ गया। सर ये बंदर है, तुम अच्छे आगे देखो। ये शख्स जो है, जी हाँ। इसने ये बांदर पाल रखा, पहले ये खुद घरों में घुसा था। ये भैया बांदर इसका घरों में घुसा है। नहीं अच्छा। मेरा बांदर बैठ जा, बैठ। तेरे घर च घुसिया नहीं, मेरा बांदर तेरे घर बड़े है। यार वो वही बात होती है। उसको उर्दू नहीं आती ना। जी 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 जी। वो यही कहे, ये इसने हेलो बाबा अपने बांदर ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। 8-10 दिनों की खुरकारी इकट्ठी करूंगा। नाक के नीचे का ताला लगवा रखा। ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ जाओ। हारून साहब, सुना है बंदरों पर एक्सपेरिमेंट हो तो वो गंजे भी हो जाती हैं। इसने इस बांदर को छोड़ा, पहले ये खुद घरों में घुसा था। ठीक है। इसने बांदर, मैं घर में था नहीं, अच्छा। जनानी मेरी घर में थी। ਐਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। और ये बंदर नहीं है। खुदा बांदर है। ओ तेरा कैसा चूसी हड्डी जैसा मुंह है। बस ये ਤੇ तुमने को गेटअप किया? कौन सा बंदर का गेटअप किया उसने? बंदर का गेटअप है सर। यहाँ से तो नहीं लग रहा। यहाँ से तो लग रहा है। वो बास्केट वाला कह रहा है मुझे भी यहाँ से लग रहा। मैं खुदा की कसम तेरा अंदाजा लगा रहा हूँ, तो इंतहाई चेजेबाज आदमी है। कैसे? ये तक उसको जान जान के वो बातें कर रहा हूँ, उधर मुंह का बात मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख। अच्छा जी। इतना रैश इंसान होता है, बांदर ही होता है। ये असल माँ, ये इस शख्स का जो मुद्दा है ना, लबलुबाब, जी जी, वो ये है कि ये इसको बांदर को घर में छोड़ता। अच्छा। ये देखता है कि किस घर में कितने बंदे हैं। अच्छा। जब घर में कोई नहीं होता फिर ये खुद बढ़ता करो। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਦਾ ਹਿਟਲਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ? यार वो बंदर नहीं है। सर बंदर है, ਤੁਸੀਂ इधर आके देखिए आप। यार बाबू मेरी तेरी मेहरबानी, ये बात को बढ़ावा ना दिया करते। अच्छा चलो बंदर है यार वो, अब ठीक है। सर इंग्लैंड का एक शहर है हार्टपूल जी, वहां पे 1973 में मेयर जो था बंदर था एक। जी हाँ। अच्छा ऐसे बंदे जो है ना जल्दी जेनी तवाजन खो बैठते हैं। वो क्यों? फिर बातें ही ऐसी करनी। अब क्या फैसला करना है इसका भाई, मेरे बताओ ना। प्रोफेसर साहब ये बांदर किने दा लिया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। किससे मोहब्बत थी आपको? ਮੈਂ ਕਲਰ ਘਰ ਗਿਆ जी। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ क्या? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦੀ जी। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਘਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਫੁੱਲ ਅੜੂਜ ਤੇ ਸੀ। अच्छा। वो छतरियां बेचने दे आते। अच्छा जी, आप इतनी बारिश में कलर घार क्या कर रहे थे? मैं नदी के किनारे बैठा था ना। जो कलर घार में नदी है। ये अपनी गंडली लेके गया था, कपड़े धो रहा था वहां। उन्होंने कहा करीब आ जा, मैं पता नहीं बचना कि नहीं बचना। अच्छा। सिर्फ ए मेरे बच्चे ने तू पालेगा, ए निका जा मासूम। अच्छा। मैं दिल देखा जी। बस वो गल्ला कर दे वो चढ़ी
कुड़बाश हो गई। क्या हो गई? कुड़बाश। शाबाश। मेरी अखा चांसू ते हत्था विच ए सी। अच्छा। और मैं अपने दिल ने वादा किया कि दी बल्दिये च मैं अपना ना दिया। वाह 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 वाह। और मैं अपने कंधे न ला के टुड़िया, बाड़ शदीद सी। क्या बात है, क्या बात है। बात ने मेरा दिल खुश कर दिया बांदर के बाप। अच्छा जी। और जो मैंने सीने न ला के टुड़िया, जंगल दे तमाम बांदरियों और बांदरां ने क्लैप की थी। अच्छा वाह वाह। वेल डन प्रोफेसर, वेल डन। जदों मैं पेड़े पहुंचा तो मैंने सुर दिते। वो क्यों? इन्हें मेरे थे दंदी कटी। क्या मैं तमाम ते आके उथों मैं एक फीडर तैयार किया है। ठीक। फिर मैंने फीडर पे आया, एदी को सर्दी रुकी। अच्छा। उस तो बाद एदी मां भी मैं मां दा प्यो भी मैं। अच्छा। और मैंने अपने बच्चे तरह पाड़े। सुबह मैंने स्कूल छड़ के आना और शाम ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। इनकी इमोशनल स्टोरी सुन के मुझे लगता है इनका सारा गुस्सा दूर हो गया है। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੋ तो ये पल सकदा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।